बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द पुलिस एंड इट्स रोल्स। द पुलिस is an organization of the government which is empowered to take various action to ensure maintenance of law and order in the state. It has the responsibility to ensure prevention and investigation of crime and offense in the society. Here is a story which will help you better understand the various phases and people involved in the justice dispensing mechanism. पुलिस एक सरकार का एक संगठन है जो राज्य में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के विभिन्न कार्यों को करने के लिए सशक्त है। वह जिम्मेदार है कि समाज में अपराध या अपराधों की रोकथाम और जांच सुनिश्चित करे। यहाँ एक कहानी है जो आपको जो है पुलिस के जो विभिन्न कार्य जो हैं और लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। Vinay went for a picnic with his friend and all went on 4 motorcycles, parked them at a place and went down to the river for fun and frolic. They returned after a few hours and found that one motorcycle was missing. They went to the nearby police station and reported the matter to the station house officer. He told them to write a report giving details of the motorcycle, make, model, color, registration number, etc., and then accept the report as an FIR. He gave them a copy of the FIR and told them to leave. इसमें क्या विनय अपने दोस्तों के साथ जो है पिकनिक मनाने गया था। वे सभी जो है 4 मोटरसाइकिलों पे गए थे। उनमें से उन्होंने जो है सारी वहाँ एक स्थान पर जो है सारी मोटरसाइकिल खड़ी की और नदी में जाके जो है वो एंजॉय करने लगे। वे कुछ घंटों के बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि एक मोटरसाइकिल गायब थी। उन्होंने पास के ही जो पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की सूचना जो स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी और उन्होंने उनसे कहा कि मोटरसाइकिल के मेक, मॉडल, कलर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट लिखे और फिर जो FIR के रूप में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने जो है उन्हें FIR की एक प्रति दी और उन्हें and told them to leave और उन्हें जो है वहाँ से जाने के लिए कहा। The police then started their investigation और पुलिस ने जो है उसके बाद में अपनी जांच शुरू की and after 1 week found the motorcycle with a man called संजय और एक सप्ताह के बाद में संजय नामक व्यक्ति के साथ में जो है उनके पास में उन्होंने वो मोटरसाइकिल पाई। They arrested Sanjay and produced him in front of the magistrate and the next day the magistrate asked the police to detain him for 7 days. An investigation for Sanjay got the possession of the motorcycle which is he did not own. The police investigation the matter are found that a man named Ravi has stolen the motorcycle and then sold it to Sanjay for a sum of rupees 10,000. The police now arrest Ravi and produce him in front of the magistrate. Therefore, the police brought the case to the judge and it was registered in the court. The procedure accused both Ravi and Sanjay to have been party to the crime of theft and requested the court to give them exemplary punishment. The defense lawyer of Sanjay pleaded to the judge that Sanjay was not aware that it was a stolen motorcycle and was therefore not guilty. However,
The judge is in the judgment punished Ravi more severely for having stolen the motorcycle, and Sanjay lightly for not asserting the correct ownership of the motorcycle before purchasing it, and thus become party of the offense. Vinay was handed back the motorcycle by the पुलिस। संजय को जो है गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार संजय को जो है उसे अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने जो है पुलिस से उसे 7 दिन की जो है हिरासत में रखने के लिए कहा, और जांच करने को कहा कि संजय को जो मोटरसाइकिल जो है वो कैसे मिली, और यह उसके पास नहीं थी। तो पुलिस ने उसने एक चार्जशीट तैयार की, और संजय ने उन्हें बताया कि उसने जो ये मोटरसाइकिल है वो रवि नाम के एक व्यक्ति से जो ने चुराई थी, और मोटरसाइकिल से उसने 10,000 रुपये में जो है वो खरीदी थी। पुलिस ने अब रवि को गिरफ्तार कर लिया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। इसके बाद पुलिस मामले को जो है वो जज के पास ले गई और उसे अदालत के में दर्ज किया। फिर अभियोजन पक्ष में जो है जो उनका जो वकील था ने रवि और संजय दोनों पर जो है चोरी के अपराध के लिए पार्टी करने का आरोप लगाया, और अदालत में उन्हें जो है सजा देने का अनुरोध किया। अदालत ने उन्हें संजय ने के जो बचाव पक्ष के जो वकील थे उन्होंने जज से अनुरोध किया कि संजय को तो पता ही नहीं था कि यह एक चोरी की मोटरसाइकिल है, और इसलिए वह दोषी नहीं है। हालांकि जज ने अपने फैसले में रवि को मोटरसाइकिल चोरी करने और संजय को जो है कम जो है सज़ा देने से पहले सज़ा दी, और उसे कहा कि जब खरीदने से पहले उसने पहले जो है मोटरसाइकिल के जो सही ओनर है उसका पता नहीं लगाने के लिए जो है उसे सज़ा दी, और इस तरह जो अपराध के लिए जो है वो भी दोषी बन गया। विनय को जो है पुलिस ने अपनी मोटरसाइकिल वापस दे दी। इन द अबव स्टोरी वी विल कम अक्रॉस 5 की प्लानर। उपरोक्त कहानी से जो है हमको 5 की प्लेयर मिल गए, जैसे कि द विक्टिम विनय और द क्रिमिनल रवि एंड संजय, द पुलिस एज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ क्राइम एंड प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। ऐसे 5 जने कौन कौन मिले हमको? एक तो खुद जो है विक्टिम विनय मिला, उसके अलावा उसके अपराधी जो मिले रवि और संजय, पुलिस को जो है क्राइम का जो इन्वेस्टिगेटर मिला, और उसके अलावा पुलिस को तो इन्वेस्टिगेटर के रूप में, और प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर जो है वो मिले। हु played the two side of the case in front of the judge, and दोनों तरफ जो कि क्या कर रहे थे कि दोनों तरफ से जज के सामने जो है वो बचाव पक्ष और दोनों जो है जज के सामने जो पक्षों की गवाही कर रहे थे। एंड द जज हु गेव द जजमेंट ऑन द केस, और जज जिसने कि केस का जो है फैसला सुनाया है। वी शेल लर्न the role and the way of the various key players in greater detail in the subsequent words। अब जो है हम we shall learn role and way of various key, और अलग अलग जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। The police and also assigned to look after the welfare of the senior citizen, infirm and disabled women and children. They are supposed to
keep a constant vigil of miscreants and anti-social elements of in these respective zones. They are also required to cultivate informers in the society of the serve as their eyes and ears, and to keep a discreet watch on activities of people in their area of responsibility. पुलिस जो है वो विभिन्न रूप में जो है वो अपनी भूमिका निभाती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन है, या उसके अलावा इन्फर्म या डिसेबल यानी दुर्बल और विकलांग है, महिलाएं हैं, बच्चों के कल्याण में की देखभाल के लिए पुलिस को भी जो है काम सौंपा जाता है। वे अपने संबंधित क्षेत्रों में जो असामाजिक तत्वों पर निरंतर निगरानी रखते हैं, उन्हें अपनी आँखों और कानों के रूप में सेवा करने के लिए और जिम्मेदारी की क्षेत्रों में लोगों की गतिविधियों पर विवेकपूर्ण नजर रखने के लिए समाज के मुखबिरों की आवश्यकता होती है। इन देयर रोल crime investigation, the people is expected to carry out an depth of the crime scenes analysis, different possibility, use of expertise of forensic expert if needed, and they had taken action to apprehend and the culprit who commit the crime. अपराध क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उनकी भूमिका में पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वह जो अपराध स्थल का गहन अध्ययन करे और विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण करें। यदि फोरेंसिक विभाग की जो एक्सपर्टीज का उपयोग करें तो ज़रूरत हो तो करें, और फिर अपराध करने वाले अपराधी को पकड़ने के लिए कार्यवाही करें। The entire process begins with the lodging of an FIR, first information report. The police can lodge an FIR only if the offence committed in cognizable offence are those which also allow the police to arrest an accused without a warrant from a magistrate. पूरी प्रक्रिया जो है FIR के दर्ज होने से शुरू होती है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस तभी FIR दर्ज करती है जब अपराध जो है कॉग्निजेबल होता है, यानी कि संदिग्ध होता है। कॉग्निजेबल अपराध वे हैं जो कि पुलिस को एक मजिस्ट्रेट से वारंट के बिना एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं। थैंक यू।